to congratulate all of you for your selection in this pre-PhD coursework, which is going to start from tomorrow on 15th March 2021. Throughout the meeting, I request all the participants to kindly mute yourself. Whenever you face any query or difficulty, you can unmute and ask your queries. First of all, let me know in which language you people are comfortable. मैम हिंदी. Ma'am, English, Hindi, Marathi, anything will do. Anybody is Yes, there yes, who ma'am. doesn't understand मराठी? कोई ऐसा है, कोई है ऐसा जिनको मराठी नहीं समझता है? Ma'am, I don't understand Yes, ma'am. Marathi. Yes, ma'am. Ma'am, I Madam, don't I'm understand comfortable in Marathi. English and Hindi only. Okay. Fine. Yes. मैम हिंदी प्लीज. हिंदी Okay. प्लीज. Okay. So I'll prefer Hindi and English, but you can ask me question in any of the language, Hindi, Marathi, English, कोई भी language में आप मुझे question पूछ सकते हैं. And kindly solve all the queries with respect to your coursework now today itself. कल से आप लोगों के मन में कोई confusion नहीं होना चाहिए. आज ही आपके जितने भी difficulties है वो solve कर लीजिए. Before moving to the actual part of our instructions, first of all, let me take your attendance first so that I can know who is actually participating in the coursework. So please be attentive and unmute करके present ही दीजिएगा. Miss Shruti Pandavkar. Miss Shruti. Absent. Miss Sujata Bele. Miss Sujata Bele. सुजाता मॅडम अनम्यूट करा आणि प्रेझेंटी द्या तुमची. सुजाता मैडम, सुजाता बेले अब्सेंटी लगेगी आज की. यू आर देयर इन द मीटिंग, काइंडली अनम्यूट एंड गिव योर अटेंडेंस. Yes, ma'am. एंड प्लीज बी देयर इन द मीटिंग. चालू करके आप लोगों को बाहर अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के सारे इंस्ट्रक्शंस मिस हो जाएंगे. सो बी अटेंटिव. फातिमा मैडम, मिस फातिमा. Present, ma'am. बाकी लोग प्लीज अनम्यूट करिए. किशोर मेंढे सर, आपका नाम नहीं लिया है मैंने. भाई यू आर कॉन्स्टेंटली क्लिकिंग ऑन दैट साइन ऑफ ऑडियो. डोंट अनम्यूट. मैं जिसका नाम ले रही हूँ वही सिर्फ अनम्यूट करेंगे. मिस अंकिता सेन गुप्ता. Present, ma'am. ओके. मिस पूजा गुल्लाने. Present, ma'am. मिस्टर यशपाल राठव. मिस्टर यशपाल राठौड़. यशपाल राठौड़ प्रेजेंट है क्या? मिस्टर मनोज कुमार हेमने. यस मैम. Present. प्रेजेंट मैम. Yes, I noted. Mr. Kishore Mende. Yes, ma'am. Mr. Manoj Varambe. Mr. Manoj Varambe. Present. Okay. Mr. Rahul Vadichar. Yes, ma'am. Okay. Mr. Yogesh Nimgade. Yes, ma'am. Mr. Manish Deshmukh. प्रेजेंट मैम. Okay. Mr. Uday Patil. यस मैडम. Mr. Prashant Fusate. Yes, ma'am. Miss Shubhangi Dahekar. Miss Shubhangi Dahekar. Mr. Govind Raja Bhatt. Yes, ma'am. Present. Okay. Miss Padma Nagdeve. Yes, ma'am. Present. Mr. Shwetam Gupta. Mr. Gupta.
Please unmute and give your attendance. You are there in the meeting. Mr. Shwetam Gupta. Hello. जी. Present, ma'am. Okay. Mr. Sankalp Hadke. Yes, madam. Present. Okay. Miss Nehal Bhandakkar. Present, ma'am. Miss Varsha Nandeshwar. Present, ma'am. Mr. Ganesh Dandekar. Yes, ma'am. Miss Akanksha Bhargava. Yes, ma'am. Mr. Avinash Shende. Mr. Avinash Shende. Miss Chanda Samrit. Present, ma'am. Miss Supriya Gedam. Miss Supriya. Madam, kindly write in chat box. You are not audible. Miss Rasika Bhole. Yes, ma'am. Present. Mr. Mukesh Kharkar. Present, ma'am. Mr. Rajiv Meshram. Ma'am. Mr. Ashish Umarkar. Yes, ma'am. Mr. Madhav Bhambere. Yes, madam. रवि दांडगिनी absent है. अभिलाषा सुखदेवे. Mr. Not Abhilash. Abhilasha, madam. Abhilash Sukhdev, present. Present, madam. Sorry, Abhilash Sukhdev. Okay, sorry. Miss Sangeeta Meshram. Yes, ma'am. Mr. Manish Aglave. Ma'am. Mr. Sandeep Kumar Rahangdale. Yes, ma'am. Mr. Ekta Pardhi. Present, ma'am. Mr. Rahul Deshmukh. Rahul Deshmukh. Present, ma'am. Okay. Miss Megha Rangari. Present, ma'am. Mrs. Anjali Phale. Yes, ma'am. Present. Mr. Ravindra Hello? Yes, yes. Mr. Ravindra Fating. Yes, madam. Mr. Manoj Bansinghe. Present, ma'am. Miss Pooja Hirwade. Miss Pooja Hirwade. Miss Pooja Hirwade, are you there? Kindly unmute yourself and give your presentee. प्रणाम करो आप लोग. Miss Pooja Hirwade, are you there? Mr. Sumit Zungari. Mr. Sumit. Sumit, unmute कराल आणि presentee द्या. Mr. Sumit, you are there in the meeting. Absentee लगेगी आप लोगों की जो लोग presentee नहीं दे रहे हैं. Mr. Sumit. Present, ma'am. Present. Mr. Pradeep Nandanwar. Yes, ma'am. Prachi Bhongale. Present, ma'am. It must be Bhongale, na? Yes, ma'am. Yes. Okay. Savi Shende, Mrs. Savi Shende, madam. Present, ma'am. Okay. Mr. Snehal Khadge.
Present, ma'am. Miss or Mrs. Snehal madam? Ma'am, it's Miss Snehal Khadge. Okay, fine. Miss Manisha Charde? Yes, ma'am. Shruti Pandavkar, are you there? Yes, ma'am. Present, ma'am. जल्दी ज्वाइन करना है कल से, उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी. एवरीवन हैज टू मार्क 10:30 बजे के बाद आपकी मीटिंग लॉक हो जाएगी. यू आर नॉट सपोज टू ज्वाइन द लेक्चर. तो आपको 10:15 बजे से ही ज्वाइन करके रखना है. यशपाल राठौड़ आए हैं क्या? आप भी जब भी नहीं थे, जब आपकी अटेंडेंस ली गई, रोज सुबह अटेंडेंस अगर होती है और आपकी एब्सेंटी लगती है, देन यू आर नॉट सपोज टू अटेंड दैट पर्टिकुलर डे. शुभांगी दहेकर, अविनाश शेंडे, पूजा हिरवड़े, Present. Present, ma'am. okay. So friends, let's begin with our actual instruction session. First of all, let me know, have you gone through your syllabus or the details of pre-PhD coursework? आप लोगों ने pre-PhD coursework के डिटेल सिलेबस वगैरह देखे हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. So let's begin with the starting part. First of all, just note down one website name. On that website, you will get all the instructions plus detail about pre-PhD coursework. एक साइट का नाम लिख लीजिए. वो साइट में आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताती हूँ, and rest of the part I will explain. Just note down the name of the site. I am typing in chat box also if there is any spelling mistake. HRDC Nagpur dot GNOMIO.com. Please repeat. HRDC Nagpur dot GNOMIO.com. Have you noted? Yes. Okay. Sorry, ma'am. Please repeat. HRDC Nagpur dot GNOMIO.com. Now I will show you the demonstration of that site. डेमोन्स्ट्रेशन के भी सारे स्टेप्स आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस साइट का काम पड़ेगा. रोज की अटेंडेंस आपको इसी साइट में जाके मार्क करनी है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Can you see my desktop? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, So the first step is open Google. Yes, madam. Okay. First step is open Google Chrome browser. Google Chrome को open करेंगे. In that Google Chrome, you have to open a new tab. और जहाँ पे अपन वेब एड्रेस टाइप करते हैं, मतलब URL एड्रेस जहाँ पे टाइप किया जाता है, वहाँ पे आपको उस साइट को टाइप करना है. गूगल सर्च इंजिन में टाइप नहीं करेंगे. गूगल सर्च इंजिन में टाइप नहीं करना है. जहाँ पे अपन वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे आपको ये साइट का नाम टाइप करना होगा. व्हाट आई हैव सेड फिर से एक बार देख लीजिए, जिनका स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा तो. HRDC नागपुर. अभी मेरे यहाँ पे वो ऑलरेडी विजिबल है क्योंकि आई हैव यूजिंग इट डेली. सो HRDC नागपुर
gnomio.com. Have you written this? मनीष देशमुख सर प्लीज म्यूट करा. मनीष देशमुख प्लीज म्यूट करा. जैसे ही आप ये साइट का नाम URL एड्रेस में डालते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. एंटर करना है कीबोर्ड से. You will see such type of page. After coming to this page, आपको एक सेकंड. You have to scroll down this page. Scroll down करने के बाद you will get the name pre-PhD coursework. कोई भी एक जन अनम्यूट करके बताइए, आपको ये दिख रहा है pre-PhD coursework? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So, okay, fine. On this page, you will get a brief introduction about your coursework. तो पहले मैं ये चीजें explain करती हूँ. Then we will enter inside the course for further details. Friends, as far as your this 10 days pre-PhD coursework is concerned, जो कल से चालू हो रहा है 15 से, and that will end on 25th. 24 तक आपके सारे थियरी लेक्चर्स और सेमिनार्स रहेंगे और 25th को आपकी एग्जाम रहेगी. दैट विल बी कंडक्टेड एट LIT परीक्षा भवन. फिजिकली उस एग्जाम के लिए आपको आना पड़ेगा और वहां पे एग्जाम होगी. एग्जाम के बारे में जी Ma'am, your voice is breaking. Hello. हेलो, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है Ma'am, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am, it is clear. Yes, Your voice मैडम थोड़ा आपका कनेक्शन देख लीजिए. अगर सभी को तकलीफ होगी तो शायद मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा, बट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली. सो काइंडली चेक युअर कनेक्शन. माझा आवाज येतोय Yes. का सगळ्यांना? हो. ओके, ठीक है. तो आपकी ये जो pre-PhD कोर्स वर्क है जो कल से चालू होगा एंड इट विल एंड ऑन 25th. जो 10 डेज का कोर्स वर्क है और 11वें दिन आपकी एग्जाम रहेगी. द कंप्लीट कोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय UG's RTM नागपुर यूनिवर्सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, C1, C2 एंड C3 कंपोनेंट. ये जो कोर्स वर्क है जो आपका 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, C1, C2 एंड C3. Out of that, you are here for 10 days for C1 and C3 component. ये 10 दिन में आपके C1 और C3 component क्लियर किए जाएंगे एंड C2 component is purely a part of your guide. वहाँ पे हमारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का कोई रोल नहीं रहेगा. तो ये जो 10 दिन आप हमारे साथ हैं, वहाँ पे आपको C1 और C3 component को कंप्लीट किया जाएगा. C1 component consists of a prescribed syllabus given by our university and that syllabus is having 5 units. वो मैं आगे डिटेल में बताती हूँ. And C3 component is about seminar. ये भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ सुन लीजिए. C1 component को आपको पूरे 10 दिन में पढ़ाया जाएगा. 5 यूनिट्स के रिसोर्स पर्सन आके आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे एंड ऑन द लास्ट डे 25 तारीख को आप लोगों की C1 कंपोनेंट के ऊपर एक एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम. दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जाम रहेगी. बट फॉर दैट एग्जाम यू हैव टू कम फिजिकली एट परीक्षा भवन फॉर एग्जामिनेशन. अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन है. कल जो आपकी प्रीवियस बैच हो गई है उनकी कल एग्जाम कंडक्ट करने की परमिशन दी थी, तो उनकी एग्जाम कल हो चुकी है. अभी आगे और लॉकडाउन का क्या होता है वो देखते हुए वी विल टेक फर्दर डिसीजंस. बट राइट नाउ ये मान के चलिए कि आपकी फाइनल एग्जाम 25 तारीख को है, जिसके लिए आपको फिजिकली नागपुर आना होगा जो बाहर गांव के लोग हैं, और परीक्षा भवन में स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर पे आपकी एग्जाम होगी. सो वी विल प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली कि 25 तारीख को अपनी एग्जाम है. आगे जैसे भी गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस आते हैं उस हिसाब से अगर चेंजेस है सो आई विल लेट यू नो टाइम टू टाइम. जो भी आपकी ऑनलाइन एग्जाम रहेगी इट कैरीज 80 मार्क्स. इसका डिटेल भी मैं बाद में बताती हूँ. और C3 कंपोनेंट इज अबाउट सेमिनार. सेमिनार आप लोगों को देना है आपके रजिस्टर्ड टॉपिक पे. इसका भी जो डिटेल है वो अपन आगे जाके मैं बताती हूँ.
उस सेमिनार को आपको मिलेंगे 20 में से मार्क्स। एंड द पासिंग क्राइटेरिया इज ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी होगी 80 मार्क्स की, आउट ऑफ 80 यू हैव टू स्कोर 44 मार्क्स मिनिमम, एंड फॉर सेमिनार द मिनिमम पासिंग इज 11 मार्क्स। टोटल आपकी मार्कशीट बनेगी आउट ऑफ 100, और दोनों में भी इंडिविजुअल पासिंग इज मैंडेटरी। ऑनलाइन एग्जाम में अलग से पास होना है और सेमिनार में अलग से पास होना है। Then that I have written already, online examination consists of 40 questions, 40 questions from each unit. Each unit carries 8 questions and multiplied by 2. अगर सही आंसर देते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, and there is negative marking that to 50%. अगर गलत आंसर होता है तो -1 होगा। तो आपको सोच समझ के जितने कॉन्फिडेंटली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ही सॉल्व करना है। टोटल 5 यूनिट्स है, हर यूनिट में से 8 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल क्वेश्चंस आएंगे 40। 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। अगर निगेटिव मार्किंग में जाता है तो -1 होगा। 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, एंड आउट ऑफ 80 यू हैव टू स्कोर 44 मिनिमम पासिंग के लिए। मैक्सिमम आप आउट ऑफ मार्क्स भी मिला सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो। Madam, I want to ask something. हाँ बोलिए। Madam, I have completed this pre-PhD coursework फ्रॉम in 2017. Due to some circumstances, I cancelled my PhD. Then from DNC college, it is also sponsored by HRDC ओके in 2017. But at that time, some circumstances came. I cancelled my PhD. Then I re-registered in 2020. यस So But- मेरा 2017 वाला चलेगा, मुझे फिर से करना पड़ेगा ये कोर्स? यू आस्क इन PhD सेल। ओके मैडम। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई हाँ। नॉलेज एक बार अगर किया है तो फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ दे सेड कि अच्छा। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर यू हैव टू डू इट, बट आपका जो सर्टिफिकेट है दैट इज प्रायर टू 2020, ओके मैम। तो दैट मे क्रिएट है प्रॉब्लम। मैम। बट अगर मेरे हिसाब से चलते हैं तो ऑलरेडी हाँ। आपने यही कंपोनेंट्स के ऊपर कोर्स वर्क किया होगा। आपकी एग्जाम हुई थी परीक्षा भवन में? हाँ हाँ, यस मैम। यस, मतलब यू आर हैविंग दैट यस मैम, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट। है। मार्कशीट भी है आपके पास? यस मैम, यस मैम। सो अकॉर्डिंग टू मी यू आर हाँ, नॉट, हाँ, हाँ, है। आपको ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एवरीथिंग। बट इफ मंडे Yes, ma'am. possible for you, you just first go to Pariksha Bhavan and ask the authorities whether to continue this course or not, because you have already completed all the Okay, ma'am. task. Have you given seminar also? यस मैम, सेमिनार Yes, ऑल्सो। तो फिर आपने नहीं करना चाहिए ये कोर्स पर क्योंकि ऑलरेडी आपका हो चुका है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि देखिए सर, आपका हाँ अगर मैम। एक सीट आपने ऑक्यूपाई करके रखी है एंड देर आर मेनी मोर एस्पायरेंट जिनका अभी सबमिशन बचा है इस कोर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा हाँ, अगर आप पूछ के अगर ये कोर्स को छोड़ते हैं तो किसी और जिनको रिक्वायर्ड है उनको हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। वेटिंग पे देर आर 50 ठीक है प्लस मैम। कैंडिडेट्स जिनको हमें और ऑक्यूपाई करना है और उनका सबमिशन 31 हाँ। मार्च तक है। तो आप मुझे मंडे मॉर्निंग प्लीज बताइए सो दैट वी कैन अकोमोडेट जो भी रिक्वायर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। ठीक है मैम, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा, परीक्षा भवन से परमिशन लेके कैंसिल कराना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ परीक्षा भवन में पूछ के आइए कि आपको फिर से ये करना पड़ेगा क्या, और मुझे बताना कि अगर उन्होंने हाँ। कहा या तो नहीं, जैसे भी वो बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी फिर से नहीं करना हाँ, पड़ेगा हाँ। क्योंकि सेम कोर्स वर्क यू हाँ। हैव ऑलरेडी कैरिड आउट इन 2017। यस मैम। ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और हाँ। कुछ किसी को पूछना है? अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस बारे में कुछ पूछना है किसी को? डेमोन्स्ट्रेशन एक बार रिपीट कर दीजिए ना, बीच का थोड़ा सा चला गया था, वॉइस लो हो गया था। So your first step is you have to click on Google Chrome browser. You have to open Google Chrome browser. Then open a new tab. जहाँ पे अपन URL एड्रेस या तो वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, देयर यू हैव टू ऐड hrdcnagpur.genomio.com। गूगल सर्च इंजिन में नहीं टाइप करेंगे,
मैं ये बार बार बता रही हूँ, गूगल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इट इज अ वेबसाइट एड्रेस hrdcnagpur.gnomeo.com। जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करते हैं, a page will appear. On that page you have to scroll it down and there you will get pre-PhD coursework. यहाँ तक ही बताया मैंने मैडम फिलहाल। Got it? Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So now friends, we are entering inside our coursework. हे तर पहिले brief description झालं आहे. Now all the details regarding each and every unit प्लस कंपोनेंट C1 का सिलेबस, सारी चीजें अभी आपको इस कोर्स के अंदर जाके मिलेगी। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दीज वर्ड्स। प्री PhD कोर्स पर के यहाँ हाइपरलिंक दिख रही है, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। कैन यू सी द हाइपरलिंक ओवर हियर? Yes, madam. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कोर्स वर्क के ऊपर। प्री PhD कोर्स वर्क जो नाम ब्लू कलर से दिखेगा वहां पे क्लिक करेंगे। Once you clicked on that page, you will get a small window, username and password you need not to add. आपको login as a guest पे क्लिक करना है, ये लिख लीजिए। After clicking on pre-PhD coursework, you have to click on login as a guest. I am clicking on this button, that is login as a guest. Now you are inside our pre-PhD coursework. There your coursework name is there, duration is there, my name, my mobile number. Every time if you face any difficulty, you can contact me on this number and my number is already there in our WhatsApp group also. So friends, अभी अपन एक एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सिलेबस ऑफ C1 कंपोनेंट। आप लोग इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको ये सिलेबस 5 यूनिट है इसमें। कैन यू सी दिस? ओके, Yes, ma'am. okay. Unit 1 concept of research, Unit 2 development of research proposal, Unit 3 data analysis and collection, Unit 4 computational tools and Unit 5 mechanics of writing. ये पांचों यूनिट्स आप लोगों को इस 10 दिन में पढ़ाए जाएंगे। अलग अलग रिसोर्स पर्सन आके आपको पढ़ाएंगे, प्लस वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों से करा के लेंगे। आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं एंड ईच एंड एवरी लेक्चर यू हैव टू अटेंड इट एंड लिसन इट केयरफुली। और आपके रनिंग नोट्स आपको साइमल्टेनियसली निकालने हैं। हर रिसोर्स पर्सन के यूनिट वाइज ऑलरेडी PPT यहाँ पे अवेलेबल है जो वो पढ़ाने वाले हैं, तो आप पहले से ही पढ़ के रख सकते हैं और क्लास में डिस्कशन भी होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूनिट 2 के नोट्स दिए हैं यहाँ पे, यूनिट 3 के भी नोट्स है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो ये चीजें ऑलरेडी आपके पास है। नोट्स इन द सेंस जो उनके PPTs है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको डाउनलोड करिए। हर यूनिट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन फिलहाल मत देखिए, वो यूनिट पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए। रिसोर्स पर्सन का पढ़ाना जैसे ही हो जाता है देन यू गो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी से करेंगे तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी, तो पहले उन यूनिट को समझने के बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिस इज अबाउट C1 कंपोनेंट। नाउ फ्रेंड C3 कंपोनेंट के बारे में थोड़ा समझ लें। C3 कंपोनेंट इज अबाउट सेमिनार। सेमिनार आपके जो रजिस्टर्ड टॉपिक से PhD के लिए आपने जो टॉपिक रजिस्टर किया है उस टॉपिक के ऊपर आपको 10 मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के वो प्रेजेंट करना है। कब प्रेजेंट करेंगे उसका टाइम टेबल मैं डिस्प्ले करूंगी। वो टाइम टेबल आपका प्रेफरेबली सेकंड वीक से रहेगा। पहले वीक में अपन पूरा थियरी पोर्शन कवर कर लेते हैं एंड फ्रॉम द सेकंड वीक दैट इज फ्रॉम 22nd और 23rd वी विल लास्ट 2-3 days वी विल टेक सेमिनार्स। आप लोगों को उतना टाइम भी मिलेगा ये वाला वीक कि आप लोग प्रेजेंटेशन बना लेंगे। वो जो भी प्रेजेंटेशन आप लोग करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रजिस्टर्ड टॉपिक, या तो रजिस्टर्ड टॉपिक का एक पार्ट भी आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विथ योर गाइड। आपके गाइड से पहले आप डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स वर्क में हमें प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें
डिस्क्लोज करनी है। हो सकता है आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने के है, somebody में गो फॉर पेटेंटिंग, कुछ चीजें नहीं अगर डिस्क्लोज करनी है तो आप लोग गाइड से बात करिए और आपको प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट डालना है वो उनसे पूछ कर ही आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। दोज प्रेजेंटेशंस विल बी इवैल्यूएटेड बाय योर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आके आपको 10 मिनट का प्रेजेंटेशन आप लोग देंगे। वो जो कुछ भी वाइवा या तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो होने के बाद 20 मार्क्स के लिए आपको जज किया जाएगा। आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको जज करेंगे। यहां तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? शैल वी मूव अहेड? यस मैम, नो डिफिकल्टी। Yes, ma'am. ओके, अभी देखिए पीपीटी जो बनाएंगे उस पीपीटी के लिए कोई फॉर्मेट एज सच नहीं है, बट अपन जनरल जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल्स एंड मेथड, आपके जो फाइंडिंग्स है, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस यू हैव टू गिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, हो सकता है आप 50 लोगों में से कुछ लोग बिगिनर्स है जिन्होंने अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ लोग मिड ऑफ द रिसर्च में हो सकते हैं और किसी का सबमिशन होगा। तो अलग अलग स्टेजेस में अभी आप लोग रिसर्च के हैं। जो लोग जस्ट बिगिनर है, जिनका अभी तक कुछ वर्क नहीं हुआ है, आप लोगों ने आरआरसी का प्रेजेंटेशन दिया होगा सिनॉप्सिस के ऊपर, सेम प्रेजेंटेशन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। प्लस अगर उसमें कुछ आपने डेटा कलेक्शन वगैरह किया होगा बीच के कुछ टाइम में, तो वो एडिशनल पार्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो लोग सबमिशन के लेवल पे आए हैं तो उन्होंने अभी तक क्या काम किया है, दैट यू हैव टू प्रेजेंट। नाउ आफ्टर प्रेजेंटेशन you have to prepare one report on that presentation topic. रिपोर्ट म्हणजे जे तुम्ही पीपीटीच्या फॉर्मॅटमध्ये देता है उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में, इलेबोरेटिव फॉर्मेट में लिखना है। पीपीटी के हैंडआउट्स नहीं बनाने हैं, मतलब स्लाइड्स के फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए। वी आर इन नीड ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट उन्होंने बोला है आपके ये C3 कंपोनेंट देखेंगे तो 20 to 25 पेजेस का आपको रिपोर्ट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपीटी, या तो जो भी सेमिनार देंगे रिपोर्ट रहेगा, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आपने बनाई है उसी का इलेबोरेटिव फॉर्म, रिटन फॉर्म, टेक्सचुअल फॉर्मेट आप लोगों को रिपोर्ट में सबमिट करना है। पॉइंट्स रिमेन एज इट इज, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, और फाइंडिंग्स आपके क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, एंड रेफरेंसेस। जो लोग बिगिनर से, जिनका कोई वर्क नहीं किया है, जो सिनॉप्सिस होगा आपका दैट इज इक्वल टू योर रिपोर्ट। आप लोग सिनॉप्सिस ही सबमिट कर सकते हैं। जो रिपोर्ट आप लोग बनाएंगे उसका कवर पेज मैंने यहाँ पे दिया है। दिस कवर पेज यू हैव टू फॉलो द instructions given in this. That cover page consists of title of your thesis. अगर फ्रेंड्स आपका टाइटल एक पर्टिकुलर टाइटल है और उसका एक सब पार्ट अगर आप लोग सेमिनार में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लोग पहले मेन टाइटल देंगे एंड द टाइटल ऑफ द सेमिनार, या तो रिपोर्ट सब टाइटल लिख के दूसरा टाइटल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब 2 टाइटल्स भी आप लोग दे सकते हैं। देन फैकल्टी इन विच यू बिलोंग, सब्जेक्ट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, name of the guide या तो co-guide, place of work and the name of the university, and finally submitted at our college and organized from। अभी यहाँ पे अपने कोर्स की डेट आएगी, यहाँ पे कौन सी डेट लिखेंगे आप लोग, 15 to 25 March 2021। दिस इज द कवर पेज ऑफ योर रिपोर्ट। एंड ऑन द लास्ट पेज जहाँ पे रिपोर्ट खत्म होगा, ऑन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस वाले पेज पे 2 लोगों की साइन जरूरी है। वन इज योर साइन, दैट इज एज अ रिसर्च स्कॉलर यू हैव टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, एंड सेकंड सिग्नेचर शुड बी ऑफ योर गाइड या तो को गाइड। अभी देखिए हो सकता है आप कोई दूसरे सिटी में है, आपके गाइड कहीं दूसरे जगह पे है, तो आपको ये रिपोर्ट बना के गाइड को लास्ट पेज भेजना पड़ेगा मेल करके, और वो स्कैन साइन आपको उनसे लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट शुड हैव मिनिमम 15 to 20 पेजेस। रिपोर्ट के ऊपर या तो यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी, क्वेश्चंस होंगे तो क्लियर कर लीजिए। कोई मराठी वाले वगैरह पार्टिसिपेंट्स हैं, मराठी जिनका सब्जेक्ट है या तो मराठी लैंग्वेज में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं? हाँ सर बोलिए, मैडम बोलिए बिगिनर बोलिए। है। हाँ हाँ एक एक जण बोला, एक एक जण बोला। हाँ हॅलो, इंग्लिश मध्ये
टायटल आहे फर्स्ट पेजचं जे कव्हर पेज आपण जे बनवतो हम्म त्याच्यामध्ये फॉन्ट साईज किंवा कोणत्या फॉन्ट मध्ये घ्यायचं असं काही ठरलेलं आहे का? जसं इंग्रजीला न्यू नाही नाही टाइम्स सर, मध्ये टाईप करावं. मराठीसाठी कृतीदेव तुम्ही कोणता पण फॉन्ट यूज करा जो रिडेबल असेल, आणि फॉन्ट साईज पण तुम्ही जनरली जे थिसिस टायपिंगसाठी वगैरे आपण जो यूज करतो त्याच्यासाठी काही क्रायटेरियाज दिलेले नाही आहे, फक्त वाचता आलं पाहिजे. ठीक आहे ठीक ओके. आहे, ओके. हेलो हेलो, हेलो. येस सर. हाँ मैम, मैम जो न्यू कमर है, बिगिनर है, हाँ उनके लिए कवर पेज पे जो थीसिस का टाइटल डायरेक्ट डालेंगे क्या मैम? हाँ, अभी देखिए आप सिनॉप्सिस बना होगा आपको ऑलरेडी, उसका सिनॉप्सिस का पहला पेज रिप्लेस करेंगे और ये वाला कवर पेज लगाएंगे वहां पे, और वहां पे टाइटल आपके मैम, थीसिस थैंक यू, वाला थैंक यू. टाइटल ही रहेगा. जी जी ओके मैम, थैंक यू. ठीक आहे. हॅलो अजून मॅडम. हा, मॅडम अजून हॅलो. एकदा ते कव्हर पेज बद्दल थोडं सांगा ना. हे जे कव्हर पेज आहे हे रिपोर्ट साठी आहे मॅडम. पद्मा मॅडम बोलताय. हो हो हा, कव्हर पेज दिसतंय तुम्हाला? हो हा, हो दिसत या आहे. कव्हर पेज मध्ये तुम्ही ज्याच्यावर सेमिनार देणार आहे ते तुमच्या थिसिसचं टायटल असू शकतं, किंवा त्याच्यातल्या एखाद्या पार्टवर तुम्ही प्रेझेंट करू शकता. तर अशा वेळेस काय करायचं, तुमचं मेन टायटल पहिले टाकायचं आणि त्याच्या खाली सब टायटल लिहायचं ज्याच्यावर तुम्ही सेमिनार प्रेझेंट केला आहे. मग फॅकल्टी कोणती आहे तुमची, सब्जेक्ट, तुमचं नाव, तुमच्या गाईड आणि को गाईडचं नाव लिहायचं असेल को गाईड तर, प्लेस ऑफ रिसर्च तुमचं काय आहे, आणि इथे सबमिट कोणाला करत आहे, इथे आमच्या कॉलेजचं नाव येईल, आणि प्री पीएचडी कोर्सवरची डेट तुम्हाला आताची टाकावी लागेल जी आपली 15 ते 25 मार्च 2021. ठीक आहे. हो मॅडम. आणि लास्ट पेज जिथे आपले रेफरन्सेस संपतात आहे त्या रेफरन्सेस वाल्या पेजवरती 2 सिग्नेचर्स राहतील. एक तुमची साईन राहील ऍज अ रिसर्च स्कॉलर आणि दुसरी तुमच्या गाईडची साईन राहील. ठीक. ओके मॅडम. मॅम विल यू शेअर दिस फॉर्मॅट? मॅडम, इट इज ऑलरेडी देअर ऑन Moodle site. Everything is with you. ओके ओके ओके. You have to go to this site and you have to go through this site for coming 10 days. आपको इसी साइट में काम करना है. ठीक है. ओके बट दिस फॉर्मॅट इज देअर ना? ओके. Yes, this is there in the 3rd section cover page. ओके मॅम. ठीक आहे. हा, अजून काही कोणाला डाऊट आहे का, नाही तर आपण पुढे जाऊया. हॅलो मॅडम. येस. मॅडम हा रिपोर्ट आपल्याला केव्हा सबमिट करायचा आहे? रिपोर्ट आपल्याला लास्ट डेला सबमिट करा. सर म्यूट करा प्लीज. हॅलो मॅम. रिपोर्ट सबमिट, एक मिनट. रिपोर्ट सबमिशन और पीपीटी सबमिशन के लिए मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगी. इन दैट गूगल फॉर्म यू हैव टू अटैच टू योर पीपीटी and report and submit us. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. हाँ फ्रेंड्स, पीपीटी सबमिशन और रिपोर्ट सबमिशन के लिए मैं गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगी, एंड इन दैट गूगल फॉर्म यू हैव टू अटैच टू योर पीपीटी एंड रिपोर्ट. उसकी एक पर्टिकुलर डेडलाइन रहेगी. आप लोग पीपीटी बनाने का काम आज से ही चालू कर दीजिए. कमिंग वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा पीपीटी, तो नेक्स्ट मंडे वगैरह आप लोगों के पीपीटी सबमिशंस रहेंगे बिफोर योर सेमिनार. हेलो. यस. Hello, madam. I have one query. Can we add some photographs related to our topic in PPT? Yes, that is the jurisdiction of you and your guide. आप लोग पीपीटी में क्या ऐड करना है वो आप गाइड से बात करके आप लोग देखिए. Okay, okay, ma'am. Thanks. ठीक है. आगे जाएंगे अभी.
एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम बिफोर रिपोर्ट आपने क्या बताया था? एक्चुअली आई लॉस्ट माय कनेक्शन। रिपोर्ट के पहले मैंने पीपीटी कैसे बनाना है वो बनाया था। वो जो फॉर्मेट बताया था आपने, मतलब एक्सप्लेन किया था क्या क्या चाहिए, बस वही हुआ था ना? मैडम जो आपको मिस हो गया है ना वो आपको इस रिकॉर्डेड सेशन का रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर डेली अटेंडेंस। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा अटेंडेंस शीट। ये अटेंडेंस आपकी आज से लेके 25 तारीख तक की अटेंडेंस यहाँ पे आपको रोज मार्क करनी है। आज की भी अटेंडेंस आप लोग मार्क करेंगे जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाती है। अटेंडेंस को कैसे मार्क करना है वो मैं स्टेप्स बता रही हूँ। सो प्लीज नोट डाउन, इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू क्लिक ऑन अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे क्लिक करने के बाद कैन यू सी दिस फॉर्म? एक जन अनम्यूट करके बताइए। यस मैम। यस मैम। Yes. मैम। हाँ देखिए, रोज 10:30 बजे अपना सेशन चालू होगा। वो शेड्यूल भी मैं बताती हूँ, पहले अटेंडेंस का सुन लीजिए। 10:30 के पहले आपको रोज ये अटेंडेंस पहले मार्क करनी होगी। 10:30 के बाद वो डेट वहां से डिसअपियर हो जाएगी। So at the time of attendance, first of all, you have to click on this drop down for your name selection. यहाँ पे आपके पूरे 50 लोगों के नाम दिए हैं। और एक चीज, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग करेक्शंस हो सकते हैं, तो आपको 1-2 दिन में फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें आपको आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह चेक करके कुछ करेक्शंस है तो वो बताने हैं। तो वो फाइनल सर्टिफिकेट्स में वो करेक्टेड वाले ही सारी चीजें ऐड होगी। फिलहाल अगर इसमें कुछ करेक्शंस है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। हो सकता है कहीं पे मिस, मिसेस, मिस्टर कुछ चेंज हुआ होगा। सो लेट इट एज इट इज। अभी आप लोगों को यहाँ से अपना नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका नाम होगा। आउट ऑफ 50 यू हैव टू सिलेक्ट योर नेम। देन किस डेट की अटेंडेंस आप लोग दे रहे हैं। जैसे आज की अटेंडेंस आप लोगों को अगर देनी है तो इंट्रोडक्टरी सेशन पे क्लिक करेंगे 14 मार्च। कल से फिर कल के पूरे डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप लोगों को रोज की अटेंडेंस यहाँ पे उस डेट की मार्क करनी होगी। एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। तो ये आपका हो गया डेली अटेंडेंस दैट यू हैव टू मार्क बिफोर 10:30। अटेंडेंस शीट में किसी को कुछ डिफिकल्टी है? मार्क कैसे करनी है अटेंड? ये सुबह से ओपन हो जाएगा, 8 बजे से आपकी अटेंडेंस शीट ओपन रहेगी। बिफोर 10:30 यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है। अभी फ्रेंड्स, रोज का शेड्यूल मुझे बताना है आप लोगों को। ये टाइम टेबल मैंने अपलोड नहीं किया है, आई विल शो यू फ्रॉम अदर फाइल। Friends, can you see the timetable? यस मैम। ठीक है। अपने टाइम टेबल जो है इट इज मोर और लेस लाइक दिस। एक सेकंड मॅडम ग्रुप पर शेअर करा। सर, ग्रुप पे कोई चीज शेयर नहीं होगी। एवरीथिंग देयर इन द मूडल साइट। मूडल साइट पर ही सारी चीजें रहेगी। ग्रुप पे कोई भी डॉक्यूमेंट या तो कोई भी चीज शेयर नहीं की जाएगी। सिर्फ रोज के जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे रिसोर्स पर्सन्स के, वो रिसोर्स पर्सन के रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होंगे। ठीक है। अभी ये डेट्स में चेंज टाइम कर टेबल दूंगी। मूडल वर आहे मॅडम। टाइम टेबल मूडल, टाइम टेबल आहे। यस टाइम टेबल मूडल पे रहेगा। कुछ करेक्शंस उसमें बाकी है, तो वो करेक्शंस होने के बाद आज इवनिंग तक टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा। But more or less timetable will remain as it is. The everyday schedule will start from 10:30.
10:30 से आपका पहला सेशन चालू होगा। 1-1 घंटे के सेशंस रहेंगे। प्री लंच सेशन विल एंड ऑन 1:30. 1:30 to 2 p.m. will be your lunch break, and post lunch session will be from 2 p.m. to 5 p.m. Every day the same schedule will be there. और अगर एक रिसोर्स पर्सन कंटिन्यूएशन में 3 लेक्चर्स ले रहा है 3 घंटे का, तो वो 1.5 घंटा कंटिन्यू करेगा। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, आपको रिफ्रेशमेंट का ब्रेक यहाँ पे मिलेगा, एंड फाइनली द लंच ब्रेक विल बी एट 1:30. So during first week we will be having all the theory lectures, and at the end, that is last 2-3 days, we will be having seminars. तो meanwhile ये वीक के एंड तक आप लोग अपने पीपीटीज पूरे कंप्लीट कर लीजिए, और सारे पीपीटीज मेरे पास आ जाने चाहिए अगले संडे या तो मंडे तक, सो दैट फ्रॉम ट्यूसडे वी विल स्टार्ट विथ अवर सेमिनार्स. तो इस तरीके से अपना रोज का शेड्यूल रहेगा. कल के दिन की जो भी लिंक रहेगी वो मैं आज रात को अपलोड करूंगी या तो सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड डेली द सेम पैटर्न वी विल फॉलो. एनी डिफिकल्टी एज फार एज शेड्यूल इज कंसर्न? मैम आपने अभी पीपीटी के बारे में बोला, तो वो अगले संडे तक आपको जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किए वो भेजनी है मैम? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मतलब जो सेमिनार आप लोग प्रेजेंट करने वाले हैं ना, prepare उसका करेंगे। पीपीटी. यस, उसका पीपीटी. अच्छा, अगले संडे तक भेज देना है, माने प्रायर टू आवर सेमिनार. Yes, because from sharing part, I will share your PPT and you just explain that. Because for technical difficulties may be there from your end. अच्छा, सबके जगह पे सारी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सब सही नहीं होता है, तो सारे पीपीटीज पहले मेरे पास आएंगे, मैं या मेरे कंप्यूटर से शेयर करूंगी, और आपको सिर्फ अपने तरफ से प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट करना. ओके, थैंक यू मैम. और किसी को कुछ पूछना है? जी, वो रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है? लास्ट डे Last तक day. आप. यस, मैं उसके 2 दिन पहले आप सेमिनार वगैरह देके फ्री हो जाइए, उसके बाद फिर Okay. फोकस ऑन रिपोर्ट. अगर साइमल्टेनियसली बना सकते हैं तो साइमल्टेनियसली भी बनाइए, बट रिपोर्ट आपको 25 तारीख तक सबमिट करना पड़ेगा. मैडम ठीक आपका आवाज नहीं आ रहा है. एम आई नॉट ऑडिबल? नो. हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है. सगळ्यांना आवाज येतोय का? The voice is very low. नो मैडम. हाँ मैम. यस. क्लियर क्लियर है, आवाज क्लियर है. ओके सर, आपके तरफ का नेट देख लीजिए एक बार. और किसी को कुछ क्वेरी हाँ, है? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है. किसी को और कुछ क्वेरी है? सगळे डाउट्स क्लियर झाले? नो मैम. Ma'am, hello. येस. Ma'am, I have one question. हम्म. Ma'am, do the topic of report and seminar should be same, or we can change it? No, it should be same. वो आपका क्लेरिफाई किया जाएगा. जिस पे आप पीपीटी दे रहे हैं उसी के ऊपर Okay, आपको ma'am. रिपोर्ट देना है. उसका टाइटल टाइम टेबल का शेड्यूल भेजा है नहीं? अभी तक मैंने शेड्यूल अपलोड नहीं किया है सर, अभी तक शेड्यूल अपलोड नहीं किया है. वो जो डेमोन्स्ट्रेशन जो भेजा था आपने, हम्म. है ना? मैम, तो आपने जो बोला था कि टोटल 5 यूनिट रह गए. यस. तो मैम वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप करेगा थ्योरी क्लास जो होंगे हमारे? वहां पे दिया है ना सर, 8 आवर्स पर यूनिट अपने को लेना है, उस हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन है. यूनिट वाइज ही चलेंगे अपन, लेकिन पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, ऐसा नहीं होगा. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स पर्सन. तो हो सकता है यूनिट्स Okay, ma'am. और डेज शफल हो सकते हैं. कल से अपना यूनिट 1 चालू होगा, बट आफ्टरनून में यूनिट 5 भी चलेगा, बिकॉज कंटिन्यूअसली रिसर्च पढ़ के आप लोग बोर हो जाते हैं. तो यूनिट 5 जो है दैट इज ऑफ इंग्लिश, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. तो रिसर्च के साथ साथ आफ्टरनून में आपका यूनिट 5 चलेगा. साइमल्टेनियसली 2 यूनिट चलेंगे आपके. मॉर्निंग में यूनिट 1 पढ़ाएंगे सर, और इवनिंग में दूसरे रिसोर्स पर्सन यूनिट 5 भी चालू करेंगे. ओके, थैंक यू मैम. ठीक आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? कोई पार्टिसिपेंट्स है जिनकी मराठी सब्जेक्ट है? एनीबडी देयर? Ma'am, yes, ma'am. आपका जो फाइनल पेपर रहेगा फ्रेंड्स, दैट इज इन Yeah, ma'am, I have a question.
जस्ट मैडम लेट मी फिनिश। आपका जो फाइनल पेपर रहेगा दैट इज इन ओनली वन लैंग्वेज, इंग्लिश में ही अपना पेपर रहने वाला है। तो जिनका मराठी बैकग्राउंड है या तो जिनका रिसर्च मराठी लैंग्वेज में हो रहा है उन लोगों को पहले से ही अच्छे से सारी चीजें ध्यान में रखनी है। मराठी किंवा हिंदीमध्ये क्वेश्चन पेपर नाही राहणार, इट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लेके आप लोगों को सारी चीजें करनी होगी। यस, किसी को कुछ पूछना था? बोलिए बोलिए बोलिए। एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. I just want to know the duration of the exam on the final day. At what time do we need to report there, sir, ma'am? यस, अभी टिल नाउ अभी तक ऐसे चलते आया है कि 11 बजे अपनी एग्जाम चालू होती है। 10:30 यू हैव टू रिपोर्ट एट परीक्षा भवन एंड 40 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स एग्जाम विल बी देयर। 40 मिनट की एग्जाम रहेगी, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मिनट्स के बाद यू विल बी फ्री। ओके, हेलो मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। यस मैम, जैसे कि एक सर ने Okay, ma'am. Thank you. ओके, Yeah. यस राठौर सर। मैम, जैसे एक सर ने पूछा था कि उन्होंने 2017 को प्री पीएचडी कोर्स वर्क किया है, तो मैंने भी किया था प्री पीएचडी कोर्स, कंप्यूटर C1 C2 और C3 एग्जाम भी दिया था, वाइवा भी हुआ था हमारा। तो मैंने पीएचडी सेल में जाके पूछा था कि मुझे फिर से करना है क्या। हाँ, उन्होंने मुझे कहा यस आप फिर से करना है। आपने भी फिर से रजिस्ट्रेशन किया है क्या? हाँ मैम, एक बार हो चुका है। ओके, सो फिर करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद का अगर कोर्स वर्क चाहिए तो फिर ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, जब भी किसने पूछा था सर, आप सुन लीजिए, आपके बैच में और एक जन है जिनका सेम प्रॉब्लेम हुआ है। मगाशी कोणी विचारलं होतं? ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज वी विल Ma'am, can I ask a question? यस यस प्लीज। Ma'am, can I ask a question? Please, Ma'am, please. I just had a small query that we'll be giving the exam on 25th. Okay. Yes, yes. तो मैम उसका सर्टिफिकेट हमको कब मिलेगा? बिकॉज सबमिशन 30 तारीख तक है, बीच में गैप भी आ गई है, होली की वगैरह छुट्टियां आ गई है, और सर, सबमिशन देखिए, के वक्त तो हमको अपना जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना उसको मिनिमम 10 डेज लगते हैं, बट जिनका तुरंत Okay. सबमिशन है फॉर देम विल प्रोवाइड वन प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओके ओके ओके। प्रोविजनल, यस, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तो- ऊपर आपका सबमिशन हो जाएगा। ओके ओके, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एचआरडीसी ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे? यस यस, एचआरडीसी ऑफिस से 25th को ही आप अगर एग्जाम क्रैक होते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके 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 ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेरी? शैल वी एंड द मीटिंग? किसी को कुछ क्वेरी नहीं होगी तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। सी यू टुमारो। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी देखिए फ्रेंड्स, Thank you, ma'am. अभी आपको क्या करना है, मीटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है यू जस्ट गो टू दैट hrdcnagpur.genomio.com, open that site and mark your today's attendance, and if you face any difficulty you can message me or you can call me। आज ही वो साइट ओपन करके देखिए सो दैट कल से फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ओके, ठीक है, आज की अटेंडेंस सबकी मार्क होनी चाहिए वो मोडल साइट पे। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, मैम वो जिनोमियो साइट पे साइन अप नहीं करना है क्या? नहीं As a नहीं, guest लॉग इन ही एज अ गेस्ट ही करना है। ओके, ठीक है, Ma'am, I Ma'am, I have one query. हाँ Ma'am, I have just started with my PhD. So whatever work I have done, only that much has to be reported, no? यस यस मैम, Not much has been done because I have enrolled just now only. यस यस, you can give on synopsis part only। I can give on synopsis and improvisation, no, ma'am? Yes yes yes। Okay, thank you, ma'am. Okay.
Yes, Savi madam. Yeah, ma'am, actually, currently I am in Delhi. So I'm been coming by 23rd. Okay. So, what about my 24th class then? मैडम Can I देखिए be able to attend? 23rd और 24th पे सेमिनार से रहेंगे, तो अगर Right, आप ma'am. ट्रैवलिंग में हैं तो उस वक्त थोड़ा सा Right, पार्ट ma'am. अगर आपका मिस होता है तो दैट विल बी ओके। तो Okay, पहले ma'am. वाला थियरी पार्ट तो आपका हो जाएगा। Sure, ma'am. That will be over. That I'm going to complete for यस, sure. तो आप ट्राई Okay, करिए कि thank you, ma'am. मीटिंग में लॉगिन करके रहिएगा जब सेमिनार्स भी चलते हैं, और सभी लोगों Yeah, को सबके 10:30 I'll be सेमिनार्स। reaching there, ma'am. 10:30 on 24th I will be reaching there in Nagpur itself. ओके 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 फाइन। I'm और सबको starting सबके at 8 सेमिनार्स in the अटेंड evening. करने हैं बिकॉज दिस कोर्स वर्क इज ऑफ 60 आवर्स, तो कंप्लीट 60 आवर्स आपका प्रेजेंस होना चाहिए। Clear, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस हेलो यस हाँ यस मैम, मैम। ये जो आपको हेलो नेक्स्ट संडे तक पीपीटी मैम, रिपोर्ट भेजना सेमिनार है, कैसे सेंड करना है? सर मैं गूगल बाय फॉर्म मेल? दूंगी। बाय मेल वेट मैंने पहले ही या कहाँ बताया। से? वेट मैंने पहले ही बताया है, आई विल प्रोवाइड वन गूगल फॉर्म। इन दैट गूगल फॉर्म यू हैव टू हेलो अटैच योर पीपीटी। एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम, यस। यस फाइन। हाँ रिपोर्ट भी उसी मैडम, पे हियर इज देना है नेटवर्क और प्रॉब्लम। मैं दो पीपीटी भी अलग उसी पे ही देना है। वेट हेलो फ्रेंड्स, आई विल प्रोवाइड गूगल हियर फॉर्म्स। इज नेटवर्क प्रॉब्लम। आई विल प्रोवाइड जी गूगल जी। फॉर्म्स फॉर पीपीटी एज वेल एज फॉर रिपोर्ट। दो अलग अलग रहेंगे और उसमें आपको आपके पीपीटीज और रिपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे। ओके मैम, थैंक यू। Madam, यस how would we know whether our attendance has been marked or not? अगर किसी की मार्क नहीं होती है तो उनको मैं बताऊंगी कि उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। Okay. ओके, और अटेंडेंस आपको वहां पे तो मार्क करनी है, बट ऑनलाइन सेशन में भी आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। इसीलिए आपके Okay. नाम से ही आप लोग लॉगिन करिए, किसी दूसरे के आईडी से लॉगिन मत करिए। जैसे जब भी एक सर ने नंबर दिख रहा था तो मैंने उनको तुरंत बोला कि आपका नाम उसमें डालिए करके। आपके नाम को देखते हुए आपकी अटेंडेंस ली जाएगी ऑनलाइन सेशंस में। अगर आप लॉगिन करके कहीं दूसरा काम करते हैं और अगर मैं वर्बली अटेंडेंस लेती हूँ और आपकी अगर अपसेंटी लगती है तो उस डे की आपकी पूरी अपसेंटी रहेगी, और एक दिन मतलब 6 आवर्स आपके माइनस हो जाएंगे 60 में से। तो वो 60 आवर्स आपको, या तो 6 आवर्स आपको नेक्स्ट कोर्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए कि आप लॉगिन करके कुछ दूसरा काम कर रहे हैं और जब मैं अटेंडेंस लेती हूँ और आप लोग वहां पे नहीं रहते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपके हर दिन के हर सेशंस अटेंड करने हैं पॉझिटिव्हली। मॅडम एक विचारायचं होतं मला. हॅलो. येस सर. जसं आरसीच्या मध्ये सिनॉप्सिस सबमिट केलं होतं तेव्हा आम्हाला 15 होतं तेव्हा ते. आता जे पीपीटी बनवायचं असतं, नॉर्मल पीपीटी आपण जे बनवत असतो स्लाइड शो सारखं, अशा प्रकारचा तसंच बनवायचंय सर, साधं वाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. प्रेझेंटेशन. कोणता सब्जेक्ट आहे सर तुमचा? हो हो सर. तुम्हा लोकांच्या वेळेस नव्हतं प्रेझेंटेशन, पण आता तुम्हाला इथे पीपीटी बनवावं लागेल. ठीक है, ठीक हेलो. ठीक है. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ मैडम, वो अटेंडेंस के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, बट वो ओपन होने के बाद में वो कहाँ जाना है वो समझ में नहीं आ रहा मैम. अटेंडेंस शीट का नाम दिखेगा आपको. मैम नहीं दिख रहा है उसमें. आपने कुछ तो भी अपने स्टेप्स नोट डाउन नहीं करके रखी कॉपी में? किया ना मैम, ओपन पेज करना था, उसके बाद में वो मूडल डॉक, मूडल कम्युनिटी फोरम, मूडल रिलीज नोट, यू आर ऑन द रॉन्ग पेज. स्क्रॉल करिए, वहां पे प्री पीएचडी कोर्स वर्क दिखेगा. Don't do it simultaneously. Let me finish my meeting and then you go through this video, recorded video, which I will share, and then do your task. Okay. Don't do it simultaneously. Okay ma'am. ठीक है. Okay. So I hope सबके queries solve हो गए होंगे. So see you tomorrow at 10:15. Now I am ending the meeting. Anybody has any query?
पूछ लीजिए अभी कुछ क्वेरी होगी तो, अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग। मैडम हाँ हेलो। मैडम मैंने 2 बार वो सबमिट किया एक्चुअली। पहली बार जब आप बता रही थी, डेमो बता रही थी, तब उस वक्त भी क्यों किया किया था। साइमल्टेनियसली? आई हैव टोल्ड एवरीवन डोंट डू इट साइमल्टेनियसली। मतलब आप लोगों का मीटिंग में ध्यान नहीं है, आप बाकी जगह पे दूसरा काम कर रहे हैं। मैंने बोला है मीटिंग खत्म होने के बाद आपको मूडल साइट में देखना है। अभी देखिए एक अटेंडेंस कैसे आप लोग कम कर सकते हैं, दैट इज नॉट इन माई हैंड। 2 बार क्यों अटेंडेंस दी आप लोगों ने? सॉरी मैडम, सॉरी मैम। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो एट 10:15। ओके मैडम। ठीक है, कल के लिए लिंक मैं आज शाम को सेंड करूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, सो Thank you. गुड डे, सी यू Yes. टुमारो। Thank you. Good day, madam. Yeah.